Good morning, everyone. I hope you all are well. In our previous video, we have started the chapter Health and Hygiene, and we have covered the topics food and its component, balanced diet, food, and fitness. So, today we are going to start our new topic, that is diseases. So, what are diseases? When you are sick, you don't feel well, you feel restless, you feel tired, you don't feel happy, you don't want to play outside, you don't like to eat anything. So why this happens? So because your body does not function properly as it is doing in normal days. जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल डेज़ में जब आप नॉर्मल होते हो, कोई फीवर नहीं होता, तब जैसे आपकी बॉडी बिहेव करती है, वैसे जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करती, दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड डिजीज़. सो डिजीज़ is the condition when your body or a part of it does not function properly. This is called disease. So disease can be caused by many reasons. It can be due to lack of proper diet. अगर आप balanced diet नहीं ले रहे हो for a long time, it can lead to disease. And it can also be caused by some harmful organisms which are called germs or microbes. So germs are those harmful organisms which when enter your body cause a disease. So on the basis of how the disease is caused, this is divided into two categories कि disease किस कारण से हो रही है, उसके basis पे हम disease को टू कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. So today we will discuss non-communicable diseases. So non-communicable diseases are those which do not spread from one person to another person. ये वो diseases होती हैं जो एक person से, जो एक sick person से दूसरे person को transfer नहीं होती. ठीक है. So some of the non-communicable diseases are caused due to the lack of or the deficiency of a particular nutrient in our food. कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ इस कारण से भी होती हैं जब हम अपने फूड में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की बहुत टाइम से फॉर अ लॉन्ग टाइम एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, मींस डेफिशिएंसी हो जाए, तो उन डिजीज़ेज़ को हम क्या कहते हैं, जो किसी डेफिशिएंसी ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के कारण होती हैं. दोज डिजीज़ेज़ आर कॉल्ड deficiency diseases because they are caused due to the deficiency of a particular nutrient. So first is night blindness. It is caused due to the lack of vitamin A. So night blindness is caused due to the lack of vitamin A. अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो night blindness can occur. So as the name clearly indicates, night means रात और blindness means the person who cannot see. So the person who is suffering from night blindness is not able to see the things properly in the dim light. वो रात को जब अंधेरा हो जाता है, लाइट प्रॉपर नहीं होती, सनलाइट नहीं होती, तो he or she cannot see the things properly. So it can be prevented by taking a diet rich in vitamin A. क्योंकि विटामिन ए की कमी से हो रही है तो we should take vitamin A. So विटामिन ए की सोर्सेज क्या हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरेट, मैंगो, पपाया, मिल्क, बटर एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें खाने से हमें क्या मिलता है? विटामिन ए. एंड विटामिन ए रिच डाइट खाने से कौन सी डिजीज़ से हम बच सकते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस. सो नेक्स्ट इज स्कर्वी. Scurvy is a disease which is caused by the deficiency of vitamin C. विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? स्कर्वी. ठीक है. सो स्कर्वी के में होता क्या है? द पर्सन हु इज़ सफरिंग फ्रॉम स्कर्वी हैज़ ब्लीडिंग गम्स और स्वेलिंग ऑफ जॉस. आपके टीथ के बीच में से, आपके गम्स में से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है या फिर स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है. सो अगर हमें स्कर्वी से बचना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? विटामिन सी की रिच डाइट. सो विटामिन सी के सोर्सेज क्या हैं? ऑरेंज, लेमन, सारे सिट्रस फ्रूट्स. जो भी सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो सोर खट्टे फ्रूट्स होते हैं. सो विटामिन सी रिच डाइट लेने से, मींस लेमन, ऑरेंज, ये सब, गूसबेरी, जो भी हम ये फ्रूट्स लेंगे या अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो वी कैन
विटामिन सी हम रिच डाइट लेंगे तो हमें स्कर्वी से बच सकते हैं. सो नेक्स्ट इज रिकेट्स. Rickets is a disease which is caused due to the lack of vitamin D. विटामिन डी की कमी से कौन सी प्रॉब्लम होती है? रिकेट्स. ठीक है. एंड नॉट ओनली विटामिन डी, ऑल्सो द लैक ऑफ मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आर डाइट. अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की कमी हो जाए, लैक हो जाए, तो द पर्सन विल सफ़र फ्रॉम रिकेट्स. सो हमें विटामिन डी और कैल्शियम, ये फॉस्फोरस मिलेगा कौन सी सोर्सेज से मिलेगा? सो इट्स सोर्सेज आर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स लाइक कर्ड, चीज़, क्रीम, बटर आर द सोर्सेज, इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. सो एंड विटामिन डी का सोर्स क्या है? मेन सोर्स सनलाइट. एंड वी कैन गेट सनलाइट, वी कैन गेट विटामिन डी फ्रॉम सनलाइट. एंड जो विटामिन डी है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन आर बॉडी. अगर हम ये सारी चीज़ें ले रहे हैं, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, बट अगर विटामिन डी नहीं है हमारी बॉडी में, तो वी कैन नॉट एब्जॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फ्रॉम द फूड दैट वी आर टेकिंग into our body. We cannot absorb it, so there is no use of it. अगर हम खा रहे हैं, अगर हमारी बॉडी को वो लग नहीं रहा, हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो दैट्स वाई विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज विटामिन डी हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करता है. एंड रिकेट्स, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज़ सॉफ्ट और वीक बोन्स. उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं. सो द पर्सन सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज़ पेन इन लेग्स, बोन्स में पेन रहती है, और उसकी बोर्ड लेग्स या फिर या तो नीज़ वाला जो एरिया या तो वो अंदर की तरफ होगा या फिर ज़्यादा बाहर की तरफ, मतलब उसकी लेग्स जो होंगी वो प्रॉपर नहीं होंगी. नेक्स्ट इज़ गोइटर. गोइटर इज़ अ डिज़ीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय द लैक ऑफ मिनरल आयोडीन. आयोडीन की कमी से कौन सी डिज़ीज़ होती है? गोइटर. सो गोइटर में होता क्या है? देयर अकर्स अ स्वेलिंग इन द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? हमारा नेक रीजन में. नेक में हमारे थायराइड ग्लैंड होता है, एंड दैट थायराइड ग्लैंड गेट्स स्वेल्ड. वो स्वेलिंग आ जाती है उसमें अगर हमारे खाने में आयोडीन की कमी हो जाए. एंड वी कैन ईजिली गेट द आयोडीन फ्रॉम आर सॉल्ट दैट वी ऐड इन आर vegetables. तो it can be cured by taking iodine rich diet. So like iodized salt, seafood, इन सब से हमें क्या मिलता है? मिनरल आयोडीन. एंड आयोडीन रिच डाइट लेने से हमें क्या नहीं होगा? गोइटर. सो नेक्स्ट इज एनीमिया. एनीमिया इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल आयरन. आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है? एनीमिया. एंड इट लीड्स टू द लो हीमोग्लोबिन लेवल इन द बॉडी. इससे हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है, मीन्स हमारे ब्लड में आरबीसीज जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, एंड विच रिड्यूसेस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड. आपको पता है हमारा ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, एंड इट सप्लाई ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ अ बॉडी. सो अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन क्यों कमी होगी? क्योंकि हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा. और हीमोग्लोबिन लेवल कम क्यों होता है? बिकॉज आयरन की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में. तो प्रॉब्लम क्या आती है? एनीमिया. द डिजीज़ विच अकर ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इज़ एनीमिया. एंड इससे हम क्योर कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग अ आयरन रिच डाइट. और आयरन किन चीज़ में होता है? मीन्स इसके सोर्सेज क्या हैं? एप्पल, स्पिनच, गुआवा, बनाना, ब्रिंजल, जैगरी. दीज आर द सोर्सेज ऑफ आयरन. ठीक है. एंड नाउ ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज कैन लीड टू द डिजीज सच एज ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ एंड हार्ट डिजीज़. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मतलब फैटी फूड खा रहे हैं ज़्यादा, एंड एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी हमें डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जैसे कि ओबेसिटी मीन्स मोटा हो जाना, एंड डायबिटीज़ मीन्स शुगर, एंड सम हार्ट प्रॉब्लम्स. कुछ हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. सो
Some people are allergic to dust, food, animals or some drugs. कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं, चाहे डस्ट के एक्सपोजर से होने से या किसी फूड से. कईयों को वीट एलर्जी होती है, ठीक है. सो दे कैन नॉट ईट दो चपातीज़, मतलब वीट से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खा सकते. सम हैज़ एलर्जी फ्रॉम पीनट्स. सो व्हेन दे आर एक्सपोज्ड, या तो वो उससे एक्सपोज में आए या फिर वो उस चीज़ को गलती से कंज्यूम कर लें. सो देन देयर बॉडी बिकम्स अनकम्फर्टेबल एंड इट कैन लीड्स टू itchiness, sneezing, rashes on their body and they become quite ill. वो बीमार हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो ऐसी कोई एलर्जिक चीज़ को कंज्यूम कर लें या फिर वो उससे एक्सपोज हो जाए, मतलब उसके कांटेक्ट में आ जाए. नेक्स्ट इज़ आर कम्युनिकेबल डिसीजेस. बेटा नॉन कम्युनिकेबल वन पर्सन टू अनदर पर्सन नहीं स्प्रेड होती, लेकिन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर दोज विच कैन पास फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, जो एक वन पर्सन से अनदर पर्सन में स्प्रेड होती है. एंड दीज आर कॉज्ड बाय जर्म्स, मीन्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स. ये जर्म से स्प्रेड होती है एंड दिस कैन पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एंड फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, ये सारी डिजीज़ेस क्या हैं, हमारी कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. एंड ये किससे होती हैं, फ्रॉम germs. And germs are those organisms which grow very fast, जो बहुत जल्दी फास्ट ग्रो करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मीन्स मल्टीपल मीन्स बहुत ज़्यादा, एक से बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं. एंड वो उतनी ही जल्दी फास्ट स्प्रेड भी होते हैं. एंड अगर वो स्प्रेड होते हैं फास्ट, इतना फास्ट स्प्रेड होते हैं, तो दे आर वेरी हार्मफुल एंड बिकॉज दे कैन कॉज सो मैनी डिजीज़ेस. और ये हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं फ्रॉम द इन्फेक्टेड फूड, वाटर, एयर और इवन अ कट. अगर हमारे कहीं पे चोट लगी हुई है एंड वी गेट एक्सपोज टू दीज जर्म्स, तो भी ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं. एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस कॉजिंग जर्म्स. फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस. बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज़ेस कौन सी हैं, ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, निमोनिया, टाइफाइड, ये सारी किस चीज़ से होती हैं, फ्रॉम बैक्टीरिया. एंड नेक्स्ट इज़ फंजाई. फंजाई से कौन सी डिजीज़ेस होती हैं, स्किन डिजीज़ेस. दे कैन कॉज स्किन डिजीज़ेस लाइक रिंग वॉर्म, एथलीट फुट, जॉक इच, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ प्रोटोजोआ. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एमेबिक डाइसेंट्री एंड मलेरिया. नेक्स्ट इज़ वायरस. वायरस से होने वाली डिजीज़ेस कौन सी हैं, कॉलरा, कॉमन कोल्ड, फ्लू, पोलियो, मिसल्स एंड चिकन पॉक्स एक्सेट्रा. ये सारी डिजीज़ेस क्या हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. एंड दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस कॉजिंग जर्म्स. सो वी विल स्टडी द कम्युनिकेबल डिजीज़ेस in detail in our next lecture. Till now you have to read the non-communicable diseases and learn the topic properly. Thank you.